Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 9 for practice series question science level 2 for CTET, RTET, STET, TGT biology and science questions. So the first question is, which one of the following statement is true about endemic species? Endemic species जो होती हैं उनके लिए कौन सी statement true है? They are not affected by destruction of their habitat. वो अपने habitat के destruction से खत्म होने से affect नहीं होती हैं. False statement. They are found only in zoos and botanical gardens. This is also false. They are found exclusively in specific habitat. Yes, this statement is true for endemic species. Endemic species can never become endangered. This is also false. एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे किसी आइलैंड में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर जोन में. ठीक है, क्योंकि इनके दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि ये एक एरिया स्पेसिफिक एरिया के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं. They are actually highly affected by their habitat destruction. They are more likely to become endangered. Okay, so option C, they are found exclusively in specific habitat, is correct option for this question. Next question is, select the correct statement about biosphere reserve. Biosphere reserve को लेकर आपको correct statement choose करनी है. These are the protected areas meant for the conservation of endemic species only. Okay, this statement is false. These are the area meant only for the conservation of plants and animals. This is also false. These are the areas which help to maintain the biodiversity and culture of the areas. This statement is true. बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये एक यूनिक होते हैं क्योंकि इनको डिज़ाइन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके लाइफस्टाइल को. ठीक है, और जो ट्राइबल जो है पीपल्स हैं वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ साथ. ठीक है, किसी भी चीज़ को हार्म किए बिना. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट डी और देख लेते हैं. दीज आर द protected areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. No. So C option is correct option for this question. Next question is, study the following statement. In following statements को आपने study करना है. Germination of seed does not take place under dry condition. Okay. Nutrient get transported to each part of the plant in dissolved form. Okay. The supply of water to crop at different intervals improves the texture of the soil. Okay. The supply of water to crop makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. Okay. Water protect the crop from the both frost and hot air currents. Okay, so इसमें हमें the statement which justify the need to irrigate crops are, वो statements को choose करना है जो कि correct है, जो सही irrigate crops के लिए justify कर रही हैं. सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता, उसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है हमें. ठीक है, जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट करता है. सेकेंड ऑप्शन इज न्यूट्रिएंट गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट इन डिजोल्व फॉर्म. दिस इज ऑल्सो ट्रू. न्यूट्रिशंस जो होती हैं वो मिनरल्स के थ्रू प्लांट के अंदर डिजोल्व फॉर्म में, वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में सप्लाई होते हैं. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इम्प्रूव्स टेक्सचर. नो. जो टेक्सचर होता है ना सॉइल का, वो बेसिकली किससे डिफाइन होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है किससे, मिनरल पार्टिकल्स के साइज से. तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स किस साइज के हैं, इस उससे टेक्सचर का पता चलता है. तो दिस इज फॉल्स. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू. जो सप्लाई होती है पानी की वो सॉइल को पोरस नहीं बनाती. पोरिसिटी जो होती है वो यूजुअली ऑर्गेनिक मैटर से बनती है. सॉइल के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स
है नहीं है, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं और वो उसके गैसेज एक्सचेंज को बढ़ाते हैं. So this is also a incorrect statement. Then last option is E. This is true. Water protect करता है crop को from frost and hot air current से. So correct answer for this question is A, B, E statements. Fourth option is correct answer. Next question is, if we add a handful of garden soil to a beaker, a handful, sorry, to a beaker filled 3/4 with water, stir and contents with a stick to dissolve the soil and then let it stand undisturbed for some time. We observe different layers. The order of these layers from the bottom to the top is, बॉटम से टॉप का हमें लेवल बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल सेटल होंगे बॉटम में, जो हैवीएस्ट होंगे, लार्ज होंगे, वो सबसे बॉटम में सेटल होंगे. सो ये कौन से उसके अंदर आते हैं, आपकी ग्रेवल सॉइल के अंदर. ठीक है, जो हैवी स्टोन सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेवल सैंड के अंदर आते हैं. सो आपका ऑप्शन बी एंड सी तो पहले ही रिमूव हो जाते हैं. उसके बाद आएगा सैंड, जो कि थोड़ी सी हल्की होती है ग्रेवल से, और वो नेक्स्ट लेयर बनाएगी आपकी. थोड़ी सी हल्की होती है बट more heavy than clay water. Okay, so next option is sand. So your fourth option is correct option. Then we add clay. Clay क्या होती है, जिसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और जो धीरे धीरे सेटल होने लग जाती है सैंड के ऊपर. ठीक है, उसके बाद आपका वाटर ऐड होगा, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मिनरल पार्टिकल्स होंगे जिसके पास. देन ह्यूमस, जो कि डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो लाइट होता है बहुत वेट में और फ्लोट करता है पानी के सरफेस पे. So correct option for this question is 4. Sorry, repeated question. Next question is, cereals such as wheat and gram are grown in an area. The soil of this area must be. एक्चुअली इंडिया की बात करें ना, सो वीट ग्राम जो है वो नॉर्थ रीजन्स में बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं. नॉर्थ में बेसिकली जो आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इधर के जो एरियाज़ है ना, इनमें ग्रो किए जाता है. सो इनमें सॉइल कैसी चाहिए होती है, वो सॉइल चाहिएगी जिसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी हो. ठीक है, और जो क्ले होती हैं, क्ले और लोमी सॉइल जो होती हैं, उनके पास अच्छी खासी वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है और ये असेंशियल होती है इस टाइप की क्रॉप्स के लिए. सो क्ले एंड लोमी सॉइल बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग वीट एंड ग्राम, जिनके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखे, जो वाटर को रखे, जिसके पार्टिकल्स फाइन हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following commonly used fuel has maximum calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है आपको, कौन से फ्यूल की मैक्सिमम होती है. फर्स्ट है कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, सेकंड डीजल, थर्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देन पेट्रोल. एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सही जाते हैं, बट वी प्रेफर सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. इसकी भी जो वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती है 55 के होती है. सीएनजी की भी अप्रॉक्स 55 के ही होती है. पेट्रोल की आपकी 45 के होती है एंड डीजल की भी 45 के होती है आपकी. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. ओके, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो नाइट्रोजन को हटा दो आप, ठीक है, रिमूव नाइट्रोजन एंड O2, CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स कंबाइंड टुगेदर अबाउट. ओके, सो नाइट्रोजन कितनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%, एंड ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%. सो ये दोनों मिलके कितना बनाती है, 99%. बचा कितना, 1%. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1%. 1% जो भी रिमेनिंग है वो सारी गैसेस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. The fresh water stored in ground is less than the present in the river and lake of the world. No, it's not true. ये एक false statement है. जो fresh water होता है एक्चुअली वो वेल्स में, ट्यूबवेल्स में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ज़्यादा स्टोर्ड है. ठीक है, दी स्टेटमेंट इज, वाटर shortage is a problem faced by people only in rural areas. No, ये जो वाटर की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है. ठीक है, ये ग्लोबल क्राइसिस के अंदर आती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड ये रूरल हो या अर्बन हो, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में बराबर देखी जाती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, वाटर फ्रॉम रिवर
इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड? नो। इरिगेशन के लिए हमारे पास कैनाल्स होते हैं, वेल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोसेस चलते हैं। सो इज नॉट ओनली, ओनली का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट is rain is the ultimate source of water. Yes, this is true. This statement is true. D option is correct option for this question. So आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। आई थिंक इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें कि डी ऑप्शन, इन ऑप्शंस को आप कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement about adding organic manure to the soil. Okay, they make the soil rigid so as to hold the plant firmly. नहीं, ये रिजिड नहीं बनाते सोइल को। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं एक्चुअली ये सोइल को और पोरस बनाते हैं, ठीक है। और पोरेसिटी जो होती है वो हेल्प करती है किसमें, गैसेस के एक्सचेंज में, रूट पेनिट्रेशन में, वाटर होल्डिंग में। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे एड इनऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इज कंसिडर्ड वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। नो, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है एक्चुअली वो ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, इंस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक प्रेफर करेंगे, ये भी गलत है। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। यस, जो मैन्योर प्रोवाइड करेंगे हम तो वो सोइल के टेक्सचर को तो बाइंडिंग पर्पज के लिए सही करेगा, उसको बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ाएगा उसकी, उसके पार्टिकल्स को जोड़ के रखेगा, एसोशिएट करके रखेगा। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। They enhance the water holding capacity of the soil. Yes, this is also true. So C and D options are correct options for this question. Next question is, given below are a few chemical processes: rusting of iron, respiration, bundle of burning of a candle, photosynthesis. Which two of these represent slow combustion? इनमें से slow combustion कौन सा है? सो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसको प्रेजेंस चाहिए होती है एयर की, मॉइस्चर की, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल, नो। रेस्पिरेशन, यस, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडाइज होती हैं चीज़ें, एनर्जी रिलीज होती है, स्लोली स्लोली होते हैं ये भी सेल्स के अंदर प्रोसेस, काफ़ी सारी साइकिल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। So this is true. Photosynthesis, no, this is not a slow process. So option A and C. A and C are correct option for this question. Next question is, biosphere reserves conserve wildlife, traditional tribals life, forest resources and all of above. सो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया को जो कि डिज़ाइन किया जाता है कंजर्वेशन के लिए, एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पर। वो वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करते हैं, वो चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। जो एनिमल्स होते हैं उनको उन्हीं का एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं। ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को भी, जो कि हमारे पार्ट है, हमारे सिस्टम का पार्ट है। सो यस, इस ऑप्शन के लिए आपके पास वाइल्ड लाइफ भी आएगा, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफ भी आएगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आएगा। सो ऑल ऑफ अबव आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, for the conservation of forest, a successful strategy is essential. This strategy should involve, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होती है वो ज़रूरी होती है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, और उस स्ट्रेटजी को क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, नो, आई डोंट थिंक कि ये कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, top carnivores as they depend on directly on herbivore. No, not for only top carnivores, it's all for or all animals. Comprehensive program for the protection of all the physical and biological components of the forest. Yes, this is the true option. Protection of herbivore, no. Not only herbivore, not only carnivore, not only top carnivore, not only omnivore. ये प्रोटेक्शन होती है किसी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। आपको हर एक लिविंग बॉडी का, हर एक लिविंग बॉडी का उतना ही कंजर्वेशन करना होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स आर।
फर्टिलाइजर्स के अंदर जो क्रॉप्स के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन? नो, आयरन का नहीं होता। एनपीके होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। नाइट्रोजन, सोडियम नहीं होगा। नाइट्रोजन, पोटाशियम, आयरन? नो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और प्लांट्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है लार्ज अमाउंट में एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट की लीव्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की कमी होती है ना प्लांट के अंदर तो उसकी लीव्स येलो डल कलर की होती है एंड थोड़े टाइम में डेड हो जाती हैं। ग्रीन कलर जो होता है प्लांट के अंदर वो भी नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोवाइड होता है उन्हें, क्लोरोफिल जो होती है वो सब। नेक्स्ट जो आपकी फॉस्फोरस होती है वो रूट्स की डेवलपमेंट के लिए होती है, फ्लावरिंग, सीड्स अच्छे से ग्रो करें, उनकी फॉर्मेशन हो, ये सब फॉस्फोरस का फंक्शन होता है। पोटाशियम जो होता है वो ओवरऑल प्लांट की गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर रेगुलेशन के लिए, आयंस के एक्सचेंज के लिए, और ये डिजीज से भी रेजिस्टेंट करते हैं प्लांट्स को। सो पोटाशियम इज ऑल्सो। सो एनपीके जो होते हैं आपके, एनपीकेज फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजर्स के अंदर इनकी क्वांटिटी दी जाती है प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the step required for the conservation of kitchen garbage into manure are given below in a jumbled form. Okay, कुछ स्टेप्स हैं दिए गए आपको जो कि किचन गार्बेज को मैन्योर में कैसे कन्वर्ट करें। आपको अरेंज करना है उन स्टेप्स को। पुट द गार्बेज इन द पिट? नो, फर्स्ट स्टेप ये नहीं होगा आपका। कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड? ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम जो बॉटम होता है उसको कवर करेंगे पिट का जो सैंड के साथ, ठीक है। देन वी पुट द गार्बेज इन द पिट, ठीक है। फिर हम उसके अंदर गार्बेज को पुट करेंगे, उसको रखेंगे गार्बेज को। कवर द पिट लूजली विद ग्रास? और नहीं, कवर करने से पहले हम उसके अंदर ऐड करेंगे वॉर्म्स को। ओके, सो ऐड करेंगे वॉर्म्स को, तभी तो वो उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको डिकम्पोज करके उसका मैन्योर बनाने में हेल्प करेंगे। देन वी कवर द पिट लूजली विद ग्रास और गनी बैग, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आपका इसका? बी, ए, डी, सी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जब हम रेड वॉर्म्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होती है कवर करना, उसको कवर करके रखना मतलब उसको वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें आपके जो माइक्रोब्स हैं वो काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज incomplete combustion of fuel produce a oxygen gas which is poisonous and reduce the oxygen carrying capacity of the blood. Okay, कहीं भी आपको अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कोई गैस का नाम आए ना, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक लोती ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है, 200 टाइम्स मोर कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी रखती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, हमारे ब्लड में जाने की, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ये बंद कर देगी, खुद अटैच होके जाएगी। देन वी फील सफोकेशन एंड जो ये पॉइजनस गैस इसीलिए बोली जाती है क्योंकि इससे सफोकेशन होता है और इससे फिर एक ह्यूमन की डेथ हो सकती है। ओके, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम है। एल्गी बतानी है आपको कौन सी है इनमें से। सो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है। सो फर्स्ट एल्गी कौन सी है इसमें से? क्लेमाइडोमोनाज इज अ एल्गी? यस, वेट अ मिनट, ओके। देन बैक्टीरिया, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया। फंगस, फंगस कौन सा है इनमें से? एस्पार्जिलस। देन प्रोटोजोआ इज अमीबा, ठीक है। Correct option for this question is, I think, A option is correct option for this question. Next question is, which of the following statement is false in the context of chromium plating? Chromium is used for electroplating because it has a dull appearance? No, because it's a metal, it's not a dull appearance. It does not corrode. Okay. It resists scratches. Okay. It is expensive to make the whole object out of it. जो क्रोमियम होता है इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछे है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपकी वो फॉल्स है, ठीक है। इसका डल अपीयरेंस नहीं होता। वो क्रोमियम एक बहुत ही शाइनी, ब्राइट, रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस होता है जो कि यूज किया जाता है डेकोरेटिव आइटम्स के लिए, कार बम्पर्स के लिए, साइकिल्स में हैंडल्स, ब्रेक्स के लिए।
बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसकी ट्रू हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये सीरीज यूजफुल है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।